So, good morning, guys. A small audio check. Am I audible to all of you? Yes. Good morning. Is the screen clearly visible? Yes. Yeah, good morning. So, welcome to today's session of impact of COVID on risk management profession. So, basically आज हमें एक short discussion रखना है कि COVID ने कैसे हमारे प्रोफेशन को रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशन को इम्पैक्ट किया है. What are the growth opportunities after COVID and how will this profession evolve in these times of global pandemic, right? Before starting the session, I would like to know the demographics of crowd. I think many of you have already cleared FRM part 1 and part 2. Is there anyone who has cleared FRM? Is there anyone who has joined who has already cleared FRM? No. Anyone who is pursuing? Okay, Deepak is part 1 cleared. So we have a part 1 cleared candidate. um, I think we have most of the people who are pursuing FRM. Am I correct? Is there anyone who is yet to start with FRM? Is there anyone who is planning to take FRM? Yes. So we have basically two batches of people. One is who are already pursuing FRM and one is who are planning to take FRM, right? So basically the idea of this session is to have a short discussion of how COVID is impacting the risk management profession. We all know that risk management profession has been hit by COVID because जो सारे risk management practices banks use करते थे, they have failed miserably. But it also shows that risk management profession will evolve after COVID because risk management is something which is need of the hour, right? So there are two sides of the coin. This profession has been hit also because we can see that all the practices that risk managers used to use, they have failed. But at the same time, this profession will evolve with some improvements because as we can see, risk management is an essential necessity in any organization, right? So let me start with this discussion. I will keep it very short. This is a only 35 minutes to 40 minutes discussion, and this is a two-way discussion. So you will have to participate along with me. Just give me a second. Yeah. So I think whether it is the stock market crash of 1987 or the East Asian crisis of 1997, or you can say the dot-com bubble of 2000 or the subprime crisis of 2008, risk professionals every time have prepared for everything just to know that all their efforts will go in vain. Nobody has ever imagined that they will have to prepare models for a global pandemic that is thriving so swiftly and that has no endpoint. At times when Indian economy was already struggling, I think this global pandemic will hit the final nail in the coffin. Risk identification, which is an important part of risk management profession, has failed miserably because we have been relying on historical data and past events, which is not available in this case. What about those events for which no past data or no statistical models are available? How to model these kind of events? So I think this COVID, this global pandemic is the real test of resilience of banks and financial institutions. So basically today we are going to discuss कि ये COVID क्या risk लेके आया है banks में, what are the types of risk that a bank is facing, what are the government measures that the government is adopting to handle this COVID impact, and what are the new skills required for a risk professional to handle such kind of situations. तो हमारे टॉक का तीन एजेंडा है. One is the type of risk that banks are today facing. Second is the measures that have been taken by government
many of you have been asking me कि सर गवर्नमेंट मेजर्स हमें समझ नहीं आ रहे हैं कि TLTRO क्या होता है, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम क्या है. So we will be discussing in short कि गवर्नमेंट क्या measures ले रहा है and what is the motivation behind those measures. What are the new skills required for a risk professional after this COVID impact, right? So let's start the discussion. I want to ask all of you, I will keep it very simple, कि क्या क्या रिस्क बैंक फेस कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कोविड हुआ है उसके कारण बैंक्स ने क्या क्या रिस्क फेस किए हैं. For those who are already studying FRM, they might know the broad categories of risk, but I want to discuss it from a COVID impact point of view. Correct? Market risk, credit risk, bankruptcy risk. Okay. What are the other risks that bank is facing? Liquidity risk. Excellent. Any other risk that banks are facing right now? So I have got market risk, I have got credit risk, I have got liquidity risk. Treasury comes under liquidity risk only. Operational risk, correct? Interest rate risk, okay. Defaults in loan, correct? Default risk, credit risk. So we all know the broad categories, but the agenda of today's session is not to understand the broad categories alone. The objective is to understand them from a COVID impact point of view. Market risk है, but कैसे market risk है? Credit risk है, कैसे credit risk है? Operational risk है, कैसे operational risk है? Liquidity risk है, कैसे liquidity risk है? Resiliency risk है, कैसे resiliency risk है? Right? And we need to have an enterprise risk management in place. So this session is useful for all kinds of people, those who are wanting to pursue FRM, want to take risk management as a profession, and those who are already pursuing risk management. They should know कि कैसे COVID ने banking and financial industry को impact किया है, and what are the measures that government is taking. तो मैं broad measures आपके साथ discuss करूंगा कि government कैसे liquidity infuse कर रहा है, and इस time पे कैसे government ने better measures लिए हैं as compared to 2008 crisis. And at the end, we will have a short discussion on what are the new skills that are required for a risk management professional, right? So we all know that banks today are facing market risk, right? Banks market risk face कर रहे हैं, उसमें कोई doubt ही नहीं है. Market risk क्या होता है? What is market risk? I have seen that many of you are pursuing FRM. What is market risk? What is market risk? मार्केट रिस्क क्या है एंड आप कैसे मार्केट रिस्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैंक्स कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो मार्केट रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन मार्केट वेरिएबल्स, वेदर इट इज इक्विटी, whether it is bond prices going down, whether it is currency going down, whether it is commodity prices going down, or whether it is any other market variable impacting your positions. So market risk is the risk of loss on account of fluctuations in market variables, whether it is equity price, whether it is bond price, whether it is commodity price, whether it is currency price. Market risk कैसे देख रहे हैं आप? क्या क्या चीजें आपने अभी एक्सपीरियंस की हैं जिससे हमें दिखता है कि मार्केट रिस्क बहुत हेवीली पिक्चर में आया है आफ्टर दिस कोविड? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल्स? कहां पे आपने मार्केट रिस्क देखा है? What are the areas where you have experienced market risk? Equity prices. Equity has crashed, right? Equity crashed from 12,400. Nifty crashed from 12,400 to 7,500 odd levels. 7,500 odd levels. Do you know जब इक्विटी में 10% का करेक्शन आता है, अभी तो मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटी में जब 10% का करेक्शन आता है, all the investors lose a massive wealth of money. They lose a massive wealth of their portfolio. And अभी कितना बड़ा करेक्शन आया था? Market Nifty went from 12,400 to 7,500 odd levels. So huge wealth was eroded. To be precise, I think it was around 15,000 crore of market cap which was eroded from investors' portfolio. Imagine 15,000 crores. And banks, क्या banks equities में invest करते हैं? Definitely, banks का एक treasury division होता है जो अपने excess cash को invest करता है equity में.
उसका एक ट्रेडिंग डेस्क होता है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। क्या वो इक्विटी की वैल्यू क्रैश हुई तो बैंक्स को लॉस नहीं हुए? बैंक्स को बहुत हैवी लॉसेस हुए। Banks have faced heavy losses because of equity crashing. From 12,400, Nifty went to 7,500 odd levels. That is, I guess, around 40% correction. 40% correction. And investors together eroded around 15,000 crore of their market cap. That is a huge loss, right? And all this took place in only 25 to 30 days. That is the problem. हम सब वार मॉडल्स यूज करते हैं, वैल्यू एट रिस्क मॉडल, जो आपको ये बताता है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है एक दिन में। नाउ जितने भी मॉडल्स बैंक्स यूज कर रहे थे टू क्वांटिफाई रिस्क, वो क्या एज्यूम करते थे कि एक साल में या एक दिन में 2 या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। एंड वी सॉ इन दिस टाइम्स ऑफ पेंडेमिक दैट देयर वाज अ फ्लक्चुएशन टू द लेवल्स ऑफ 8 to 10 HDs. 8 to 10 HDs. Can you imagine? हम लोग जो भी मॉडल्स यूज करते हैं, जो लोग मॉडल्स को जानते हैं, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं दैट there cannot be movements above or below 3 HDs, but in times of pandemic we have seen movement up to 8 to 10 HDs. Can you imagine how the models are failing, right? So market risk was actually present a lot in equity. As we can see, banks trading desk is investing heavily in equities of other companies, and when equity prices crash, banks also face losses, right? That is one example, equity. And आज भी अगर आप देखोगे इक्विटी में मिड कैप्स में स्मॉल कैप्स में कोई लिक्विडिटी नहीं है. Mid cap and small cap have failed miserably. They have failed from you can say up to 90% of their value has been eroded. आज भी अगर आप कोई भी अच्छे मिड कैप्स देखेंगे, लार्ज कैप यू कैन से कि इट हैज रिकवर्ड टुडे, बट बहुत सारे बैंक्स मिड कैप भी होल्ड करते हैं, स्मॉल कैप्स भी होल्ड करते हैं. तो जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, दे हैव इरोडेड अप टू 90%. अगर कोई चीज 5% गिरती है तो 5% बढ़ने से वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, राइट? बट अगर कोई चीज 95% गिरती है तो उसको अराउंड यू कैन से बहुत ज्यादा बड़ा टाइम्स बढ़ना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आए. सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप, दे हैव लॉस्ट हेवीली. Their value have gone down up to 90 to 95%, and they are still not back. लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में मिड कैप या निफ्टी रैली कर रहा है. निफ्टी हैज नाउ कम टू 11,000 लेवल्स, बट स्टिल इफ यू सी मिड कैप, वो नीचे से 20% 30% ही बढ़े हैं. वो अभी तक अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे भी नहीं आए, प्री कोविड लेवल्स तक भी नहीं आए, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 70% ऑफ द मिड कैप. सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट रिस्क. Banks have lost heavily by investing in equity. Investors together have lost heavily. That is one thing. और कौन सा मार्केट रिस्क आपने देखा है कोविड के टाइम्स पे? What is the other asset class? We say at times of pandemic, at time of global crisis, at time of crisis, all the asset class fall drastically. Commodities, excellent. Crude oil में क्या हुआ था अभी? Crude oil में क्या हुआ था? For the first time, crude oil futures started to trade negative. Can you believe it? Crude oil futures started to trade negative. कोई चीज नेगेटिव कब ट्रेड करेगी? कोई चीज नेगेटिव कब ट्रेड करती है? क्रूड ऑयल प्राइस क्यों नेगेटिव गए? बिकॉज प्रोड्यूसर्स, दे जस्ट वांटेड टू सेल क्रूड ऑयल. दे डोंट वांट टू कीप क्रूड ऑयल बिकॉज उनके पास स्टोरेज ही नहीं है. इतना ज्यादा उनके पास सप्लाई था क्रूड ऑयल का एंड डिमांड मार्केट में थी नहीं, सच दैट दे डोंट हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्टोरेज कम्स एट अ कॉस्ट. सो उस केस में प्रोड्यूसर्स वर जस्ट रेडी टू सेल द क्रूड ऑयल एट एनी पॉसिबल लेवल्स. एंड व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स टू सेल, because nobody wants to take crude oil and store it because there is no storage capacity, so the prices fell drastically and it even went negative. एंड यू कैन नेवर इमेजिन कि इंडियन एक्सचेंजेस का, जो इंडियन के पोर्टल्स हैं, जो ब्रोकर हाउसेस हैं, किसी के पास कैपेबिलिटीज नहीं थी टू हैंडल नेगेटिव प्राइसेस. नाउ कैन यू इमेजिन, आपने एक फ्यूचर्स बाय किया जिसका क्रूड ऑयल का प्राइस था से $1,000. आपको क्या लगेगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 1,000.
but it went negative. So इसका मतलब तो आपका infinite loss हो सकता है. This is one thing that has come in this pandemic. Your losses can be infinite. अभी तक हम क्या बोलते थे कि गिरते वक्त losses can be finite, कि जितना आपने कैपिटल लगाया उतना ही लॉस हो सकता है. बट इसमें तो लॉस और ज्यादा हुआ लोगों को, बिकॉज प्राइजेस स्टार्टेड टू ट्रेड नेगेटिव. तब तो नेगेटिव वो किसी भी लेवल तक जा सकता है. सो दिस वाज अ ह्यूज ब्लो टू द एंटायर कमोडिटीज इंडस्ट्री. क्रूड ऑयल स्टार्टेड टू ट्रेड नेगेटिव. जिसको जो लोग रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से जानते नहीं है, बेसिकली कोई चीज नेगेटिव क्यों ट्रेड करती है? बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग. एवरीवन इज सेलिंग. व्हाई एवरीवन इज सेलिंग? बिकॉज अगर आप उसको बाय करते हो तो आपको उसका डिलीवरी लेना होगा और उस क्रूड ऑयल को स्टोर करना होगा. बट सिंस नोबडी हैज स्टोरेज कैपेसिटी, नोबडी वाज रेडी टू स्टोर क्रूड ऑयल, बिकॉज उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं, एंड स्टोरेज कम्स एट अ कॉस्ट. उनको लग रहा था कि अगर वो सेल करेंगे, if they will sell, the losses that they will get will be less than the storage cost that they would have to bear, right? So everyone was just selling, and in that case crude oil started to trade negative. Again, a huge blowback to the entire commodities industry, a huge market risk. And बहुत सारे banks का commodities में exposure रहता है, although बहुत सारा नहीं रहेगा, but there is some commodities exposure, and they were incurring huge losses. What are the other asset classes that faced? और कौन से asset classes ने implications face किया? Real estate, right? Sentiment इतना खराब हो गया. Real estate market works on sentiments, and sentiments were so bad that there were no real estate deals happening. I was reading some data and it was saying that only 2% of the pre-COVID level deals took place in this COVID times. So you can imagine कि जितनी real estate की deals, पहले तो real estate market is already dead from 2008 till 2020. Demonetization ने real estate market को और खराब किया, because real estate market works on black money, and black money was taken out of the system. And now this COVID. So real estate market में I was reading this data कि only 2% of the deals are happening from pre-COVID levels. So you can imagine real estate prices कितने crash हुए हैं. मैंने ही अपना एक house book किया था, my first house in the last year. उसका दाम ही around 12% it fell down because of this COVID. So you can imagine the sentiments and how the real estate impact, the real estate prices are going down, right? Again, a huge blowback because बहुत सारे लोगों का investments होता है real estate में. उसके अलावा I'm getting some comments. Fixed income instruments कैसे impact हुए? We all know that fixed income instruments में you get a yield which is composed of two components. One is the risk-free component and one is the credit risk premium. Now in times of pandemic, the credit risk of every issuer has increased, right? The credit risk has increased. So the yield that was demanded by the investors increased. तो अगर आपको बॉन्ड पे 6% कूपन मिल रहा था, नाउ द मार्केट इज डिमांडिंग 9%, उस बॉन्ड्स का क्या होगा? उस बॉन्ड का वैल्यू बहुत जोर से गिरने वाला है, राइट? सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड का वैल्यू हेवीली गिरा, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन वन एग्जांपल, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड दैट वाज होल्डिंग आई गेस पेपर्स ऑफ एसएल, राइट? एम आई करेक्ट? एसएल ग्रुप्स, राइट? एंड वो पेपर्स पे उनको डिफॉल्ट हुआ. अगेन अ ह्यूज ब्लोबैक बिकॉज ट्रेजरी जो है बैंक्स का, जो ट्रेडिंग डेस्क है, वो बॉन्ड्स में बहुत हेवीली इन्वेस्ट करता है, राइट? एंड वो सारे बॉन्ड्स का वैल्यू क्रैश्ड बिकॉज द क्रेडिट स्प्रेड वेंट अप, right? So we have a lot of examples. We have an example of fixed income. We have seen Franklin Templeton. We have an example of crude oil going negative. We have an example of currency, rupee going down, down and down up to the levels of 76, right? We have an example of equity, Nifty going from 10,000, 12,400 to 7,500. And we have an example of real estate where the deals are only happening to the extent of 2% as compared to the pre-COVID levels. Gold price obviously is increasing because gold is considered as a safe haven, right? तो सारा पैसा gold में जा रहा है, and gold you can see is constantly increasing and increasing and making new highs. So gold as an asset class कब बढ़ता है? जब
लोग डरते हैं. When there is a fear in the economy, everyone wants to put cash in their hands or everyone wants to fly to safety. So they start hoarding gold. And जिस तरह से gold के prices अभी भी बढ़ रहे हैं, I fear, although I'm not making any suggestions, but I fear कुछ बड़ा खराब होने वाला है अभी भी economy में. As the gold prices are increasing, I fear, as per my reading of market data, something bad is yet to come, as I can read from gold prices data. Right? But I'm not recommending any strategy कि आपको gold यहाँ से buy करना चाहिए, equity बेच देनी चाहिए. But I'm just saying, as per the gold price data readings and as per my market experience, I think something bad is yet to come in the equity markets. Because I can experience that investors are currently hoarding gold like anything. So they would go out of equity and there would be bad times as I am expecting from the markets, right? So as you can see, there was a huge market risk, around 15 lakh crore gone. This was a data of March 12. By the end of March, around 15 lakh crore was gone. Sensex crashed 3100, Nifty crashed from 12,400 to 7,500, right? Oil price started to trade in negative. Real estate sentiments hit lowest level. Franklin Templeton faces default on SL Group paper. And VIX, normal VIX levels क्या होता है? VIX is the volatility index. VIX is the volatility index. हम इसको panic index भी बोलते हैं. Normal VIX levels कितना होता है market में? 13-14%, right? And if you cannot imagine, at the times of pandemic around March, VIX went above 80. Above 80. That was the highest in the lifetime. Highest in the lifetime. To be precise, it went up to 84, 85. अब आप सोचो, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत सारे हेज फंड्स, वो वोलेटिलिटी को सेल करते हैं, वो ऑप्शंस को सेल करते हैं. They faced massive losses. They faced massive losses. This is all market risk, right? एंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कोई भी मॉडल्स ऐसे नहीं थे जो इन मार्केट रिस्क को प्रिडिक्ट कर सके. हम जो भी मॉडल्स यूज कर रहे थे वो पास्ट डेटा पे रिलाइड करता था, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे रिलाई कर रहा था. बट हैज एनी हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ दिस काइंड occurred in the past? No. So there were no statistical models, there were no historical data, and that is why we have failed miserably. I have been talking to the model teams. मेरे पास कुछ लोग हैं जो मॉडल वैलिडेशंस में, मॉडल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग द मॉडल आर ऑल स्क्रूड अप बिकॉज मॉडल्स कैन नॉट प्रिडिक्ट, बिकॉज मॉडल्स में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं. वो पास्ट डेटा पे रिलाई करते हैं. देयर इज नो पास्ट डेटा ऑफ अ ग्लोबल पेंडेमिक impacting the banks and financial institutions, right? That is the problem. That is the problem. And इसीलिए मैंने देखा है काफी सारे लोग रिस्क मैनेजर्स को कर्स भी कर रहे हैं कि क्या आप इतना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं. अल्टीमेटली जब पेंडेमिक आया तो आप कुछ नहीं कर पाए, राइट? बट आई ऑल्सो बिलीव दिस प्रोफेशन विल इवॉल्व with this kind of experience. Obviously there has been drawbacks and we are facing the curse because many people have been saying me also कि आप इतना risk management करते हैं, इतने सारे models बनाते हैं, but ultimately हुआ क्या? But this does not underestimate the demand of risk management. Obviously it will increase, it will come up with improvements, but it will only improve, right? So this was all about market risk. Next is credit risk. What is credit risk? What is credit risk? लोन डिफॉल्ट, बैंक्स ने लोन्स दिए हुए थे, वो लोन्स पे डिफॉल्ट हुए. अच्छा, मार्केट रिस्क में कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल याद आता है? मार्केट रिस्क में या कोई लेटेस्ट एग्जांपल याद आता है जिस कंपनी की वेल्थ बहुत ज्यादा इरोड हो गई हो एंड बैंक्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ हो? यस बैंक, यू कैन सी. Yes Bank, we have a practical example. Yes Bank का wealth eroded to 95-98%, and there were huge investors. HDFC invest कर रखा था, SBI invest कर रखा था Yes Bank में, and they faced massive losses, right? So we have practical examples in every risk. Let's come to credit risk. What are the examples of credit risk? Credit risk कैसे हुआ है? First of all, banks see credit ratings of borrowers,
एंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट इकरा का एक स्टेटमेंट था दैट द रेटिंग डाउनग्रेड्स आर हाईएस्ट इन द लाइफ टाइम इन दिस 2020। मतलब सबसे ज्यादा रेटिंग डाउनग्रेड्स इस टाइम पे हो रहे हैं। रेटिंग डाउनग्रेड्स मतलब जो बोरोवर है, सपोज बोरोवर टाटा स्टील है या बोरोवर कोई भी एक कंपनी है, उन सबका रेटिंग्स हेवीली गिर रहा है। अगर रेटिंग्स गिरता है तो लॉस किसको होता है? बैंक्स को, बिकॉज बैंक्स माइट बी होल्डिंग देयर बॉन्ड्स। अगर उनका क्रेडिट रेटिंग्स गिरेगा तो क्रेडिट स्प्रेड बढ़ेंगे, यील्ड बढ़ेगा बॉन्ड का, एंड एज यील्ड राइज द बॉन्ड प्राइसेस फॉल। दैट इज क्रेडिट रिस्क। दैट इज क्रेडिट रिस्क ना, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स के कारण बैंक्स को लॉस हो रहे हैं, उसके कारण ऑब्वियसली डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, उसके कारण एनपीएस बढ़ेंगे, बिकॉज बिजनेसेस आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। सो उस केस में एनपीएस, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विल इंक्रीज। Non-performing assets, if I just want to quote the data, which was normally to the levels of 2 to 3%, they may rise up to 12.5%. That is what RBI said. 12.5% आप इमेजिन करो, जितने भी लोन्स दिए हुए हैं उसका 12.5% एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब वो पैसा वापस आने ही नहीं वाला। एंड रेटिंग डाउनग्रेड्स, इट रोज अप टू 22% amid COVID-19 pandemic. So there were huge rating downgrades, NPAs were rising. इसका दो तीन implications है। एक तो bonds का value गिरा because rating downgrades हुए। Secondly, NPAs के लिए banks को losses, provisions maintain करने पड़ते हैं। बैंक्स को प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ते हैं। देयर इज अ स्टैंडर्ड, एंड स्पेसिफिकली सीए वाले लोगों को ये पता होना चाहिए, दैट इज IFRS 9, व्हिच टॉक्स अबाउट एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग। IFRS 9 क्या बोलता है कि आपको बेसिकली हमारे क्रेडिट रिस्क मॉडल्स के तीन कंपोनेंट होते हैं। वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि कितना लोग डिफॉल्ट करेंगे। वन इज लॉस गिवन डिफॉल्ट, कि अगर डिफॉल्ट होगा तो कितना लॉस होगा। एंड वन इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। ये तीनों इंपैक्ट हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इंक्रीज हुआ है बिकॉज businesses are failing, so there is a probability that is constantly increasing of default because businesses are not able to repay the installments, repay the loan installments, repay the loans, principals, interest. So probability of default is increasing. How is LGD, how is loss given default increasing? लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आपने लोन लिया है, बैंक्स ने बहुत सारी कंपनीज को लोन दिया होगा, कोलैटरल्स दिए होंगे, राइट, कोलैटरल्स दिए होंगे एज सिक्योरिटी। क्या वो कोलैटरल्स का वैल्यू गिरा नहीं है? कोलैटरल्स बॉन्ड हो सकते हैं, बॉन्ड का वैल्यू बहुत जोर से गिरा है। सो अगर बॉन्ड्स का वैल्यू गिरा है, अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी, बैंक्स जब उन एसेट्स को बेचने जाएगा तो उस केस में क्या उसको प्री कोविड लेवल्स के वैल्यूज मिलेंगी या बहुत कम वैल्यू मिलने वाली है? द वैल्यूएशंस विल बी मच लोअर बिकॉज द एसेट प्राइसेस हैव क्रैश्ड, राइट। सो जो भी कंपनी ने लोन्स लिए हैं, उन्होंने कोलैटरल्स जो दिए हैं, वो कोलैटरल्स का वैल्यू गिरा है। सो लॉस गिवन डिफॉल्ट will be definitely high because the recoveries will be low. How is exposure at default high? अभी आपको पता है कि बैंक्स के लिए मोरेटोरियम लेके आए हैं, राइट। मोरेटोरियम का मतलब क्या है? मोरेटोरियम का मतलब है कि 3 मंथ्स तक आपको कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं करना, बट 3 महीने बाद क्या ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी लगेगा? अभी वो डिबेटेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बट इमेजिन कि 3 मंथ्स के बाद ये 3 महीने के जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हुआ उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो उसके कारण क्या एक्सपोजर बढ़ा? नहीं, एक्सपोजर डेफिनेटली बढ़ा है। जो पहले 100 ड्यू था, अब वो ड्यू अमाउंट बढ़ गया। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इज इंक्रीजिंग। सो तीनों के तीनों वेरिएबल्स हॉरिबली इंपैक्ट हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हैव इंक्रीज्ड बिकॉज द बिजनेस आर फेलिंग। लॉस गिवन डिफॉल्ट हैव इंक्रीज्ड बिकॉज द रिकवरीज विल बी लो, बिकॉज द कोलैटरल्स, द एसेट वैल्यूज आर क्रैशिंग, एंड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस मोरेटोरियम्स। सो मोरेटोरियम्स बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है, मोरेटोरियम्स हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए अच्छा है, बट इट इज नॉट गुड फॉर बैंक्स बिकॉज बैंक्स का एक्सपोजर तो बढ़ ही रहा है मोरेटोरियम्स के कारण। सो बैंक्स का जो लॉस होगा वो इसके कारण, ये तीनों फिगर्स इमेजिन करो, बैंक्स का लॉस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। अगर ये तीनों के तीनों बढ़ेंगे तो बैंक्स का लॉस कितना बढ़ने वाला है? That is what we are talking about. And I was saying कि बैंक्स को IFRS 9 के अंदर एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग करनी पड़ती।
जिसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं एज पर द करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोस दे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। एक मैफ टीम होती है, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट टीम, हर एक बैंक में, जो करंट इकोनॉमिक फोरकास्ट करती है। आई वॉज सीइंग दैट जो मैफ टीम है, आई वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ द बैंकर्स, दे वर सेइंग जो मैफ टीम है वो जीडीपी को -10% तक लेके जा रहे हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट में। एंड उसके कारण वो जो पॉइंट इन टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहे हैं वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टेकिंग अ ह्यूज हिट, बिकॉज वो बड़ा प्रोविजंस बैंक्स के प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है, राइट? सो जो मैफ टीम्स है वो बहुत खराब फोरकास्ट दे रहे हैं। एज आई वाज टॉकिंग टू सम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, स्पेसिफिकली क्रेडिट स्विस गाइस, सो दे वर सेइंग कि जीडीपी फोरकास्ट दे हैव, द मैफ टीम हैड टेकन टू -10%। तो उसके कारण जो आपके पॉइंट इन टाइम फोरकास्ट आएंगे, मतलब आज के मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोस के हिसाब से जो पीडी कैलकुलेशंस आएगी, यू कैन इमेजिन वो कितनी हाई आने वाली है, राइट? एंड उसके कारण बहुत बड़े बड़े प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ रहे हैं बैंक्स को, एंड प्रोविजंस आर ऑब्वियसली अ हिट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। सो दैट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द income statement and the balance sheet of banks. That is called credit risk. So what we are saying is credit rating downgrades, bond value goes down, gross NPA is increasing, PD increasing, LGD increasing, EAD increasing, again the losses are increasing. They are saying that the NPAs now may zoom up to 14%. That is huge. 14% NPA is huge. आप imagine करो कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है जो लोन्स में है, उसका 14% डिफॉल्ट हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट? एंड एक और प्रॉब्लम बैंक्स फेस कर रहे हैं, वो हम ऑपरेशनल रिस्क में डिस्कस करेंगे, कि बहुत सारे लोग जो नो डाउट केपेबल हैं टू रीपे देयर मनी, दे आर बिकमिंग विलफुल डिफॉल्टर्स, बिकॉज इनको पता है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, वो जान के पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, राइट? बिकॉज उनको पता है कि अगर 100 डिफॉल्टर्स हैं, मैं भी उनके साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन मी, बिकॉज आई हैव अ पॉइंट टू मेक दैट माय बिजनेस इज फेलिंग बिकॉज ऑफ दिस कोविड। सो बैंक्स आर नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। करेक्ट, करण इज सेइंग स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस फेस्ड इट, बिकॉज उसके छोटे छोटे borrowers हैं। I have seen a statement made by Bajaj Finance that people are now indulging in willful defaults. That is a huge problem for banks. वो जान के डिफॉल्ट कर रहे हैं, right? Because उनको पता है they will get the shield of government. So all this is credit risk. Am I clear? Next, let's come to operational risk. How are the banks facing operational risk? Tell me. ये कोविड के कारण कैसे ऑपरेशनल रिस्क हुआ है? Any examples of how banks are facing operational risk? Okay, less workers, work from home models failed, staff limitation, correct? Basically, operational risk is the risk of loss on account of people, on failure of people, processes and systems, right? Operational risk is the risk of loss on account of failure of people, processes and systems. I was reading that इस टाइम पे बैंक्स सबसे बड़ा जो रिस्क फेस कर रहे हैं वो है रिस्क ऑफ पीपल, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, बट उससे भी बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है। व्हाई? बिकॉज ऑफ साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड्स आर एट द पीक। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अभी कैसे हो गई है? डिजिटाइज हो गई हैं, एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस में द बिगेस्ट रिस्क is the loss on account of cyber frauds. So what they were saying is payment frauds and cyber attacks, they have rose in the wake of COVID-19 pandemic. आपको पता होना चाहिए कि कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क बैंक क्या फेस कर रहा है। नो डाउट पीपल का फ्रॉड रिस्क भी है, बिकॉज सबको घर से काम करने को दिया गया है, एंड घर से any staff can indulge into any kind of risk. They can leak any confidential information. Right. So I was discussing with some of the PSU banks employees. They were saying that हमें वर्क फ्रॉम होम मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, एंड वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉइज को हम दे ही नहीं सकते, एंड एक बारी दिया था एंड सम इंफॉर्मेशन लीक्ड। सो पीपल का रिस्क हुआ। वो बैंक्स हैव नो प्रोसेसेस इन प्लेस,
कि वो कैसे वर्क फ्रॉम होम को प्लेस में लाए, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेसेस है जिसके लिए फिजिकल इंटरेक्शन इज मस्ट, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल प्रोसेसेस है. सो बैंक डू नॉट हैव अ प्रोसेस इन सिस्टम टू हैंडल ऑल दिस वर्क फ्रॉम होम क्राइटेरिया. And third biggest risk that banks are facing is the cyber frauds are increasing. Right? And I was reading a statement from Kotak Mahindra Bank. They are saying that some operations cannot work from home. बैंक के ब्रांच ऑपरेशंस है वो होम से हो ही नहीं सकते. कुछ पेमेंट सेटलमेंट्स है जो आपको रियल टाइम बेसिस पे करनी है. आपको कुछ रियल टाइम ऑपरेशंस पे चेक करना है. अगर आपका सिस्टम कनेक्टिविटी वीक है, अगर आप वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हो एंड यू हैव पुअर सिस्टम कनेक्टिविटी, तो उस केस में बहुत बड़े बड़े लॉसेस बैंक फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रॉड्स हैपनिंग इन दैट पुअर कनेक्टिविटी. दैट इज पेमेंट फ्रॉड. दिस इज द बिगेस्ट रिस्क दैट अ बैंक इज फेसिंग. राइट? साइबर रिस्क हम लोग पढ़ते ही हैं कि ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर इन सिस्टम्स. सिस्टम्स अभी हेवीली साइबर रिस्क फेस कर रहे हैं. दैट इज ऑपरेशनल रिस्क एंड आउट ऑफ द थ्री दिस इज द बिगेस्ट रिस्क. ठीक है? बिकॉज वर्क फ्रॉम होम इज नॉट सिंपल. बैंक्स के बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल प्रोसेसेस हैं. बैंक्स के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है जिसमें उनको इंटरेक्ट करने का जरूरत है क्लाइंट से. बैंक्स के बहुत सारे ऐसे रियल टाइम ऑपरेशंस है जिसमें कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं पॉसिबल है. अगर कनेक्टिविटी इश्यूज होता है देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ अ ह्यूज लॉस. आप इमेजिन करो आपने कॉल किया बैंक में कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करना है और आप क्रेडिट कार्ड ब्लॉक ही नहीं कर पा रहे बिकॉज द स्टाफ हैज नो सिस्टम कनेक्टिविटी. तो उस केस में वो जो लॉस होगा क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के कारण वो कौन बियर करेगा? क्लाइंट तो आपके ऊपर ही केस करने वाला है ना. आपके ऊपर लिटिगेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी. आई वाज सीइंग दैट इस टाइम पे जो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, लॉयर्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है. क्यों? बिकॉज लिटिगेशंस ऑन बैंक्स हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ द लॉसेस दैट कस्टमर्स आर फेसिंग. राइट? तो लिटिगेशंस बहुत ज्यादा हो रही है एंड बहुत ज्यादा लॉयर्स का फीस और डिमांड बढ़ा है इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक. ठीक है? हमें लॉयर नहीं बनना ऑब्वियसली, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट कि कितना ज्यादा लॉसेस बैंक्स को ऑपरेशनल रिस्क के कारण हो रहा है. इसी से कनेक्टेड एक और रिस्क होता है रेजिलियंसी रिस्क. रेजिलियंसी रिस्क क्या होता है? रेजिलियंसी रिस्क होता है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल एंड रेजिलियंसी रिस्क. दिस इज अ न्यू टर्म. रेजिलियंसी रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस नॉर्मली. आप रेजिलियंट नहीं हो. राइट? आप डे टू डे ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो. जैसे मुझे बताओ, पेंडेमिक है नो डाउट, बट बैंक्स के कुछ डे टू डे ऑपरेशंस है जो बैंक्स को परफॉर्म करने ही पड़ेंगे. आपको एम्प्लॉयज चाहिए जो जाके एटीएम में कैश फिल करेगा, बट बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ एटीएम के लिए कैश फिल करने आए एंड पुलिस ने उन एम्प्लॉयज को पकड़ के पीट दिया. राइट? क्या करोगे उस टाइम पे? नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक ऑपरेशन. जो बैंक्स आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक ऑपरेशन. बिकॉज अगर एक क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो गया, एक क्रेडिट कार्ड को आपको रियल टाइम पे ब्लॉक करना है तो आपको सपोर्ट चाहिए, कस्टमर सपोर्ट. बट बैंक्स वर नॉट एबल टू प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट. दैट इज रेजिलियंसी रिस्क, that they are not able to do basic operations. And I was talking to some business continuity and contingency plan guys. They were saying yahan pe to business continuity plans bhi fail ho gaye. बिकॉज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स क्या बोलते हैं कि अगर आपका कहीं का सर्वर वीक है तो आपका एक दूसरा लोकेशन होगा जहां पे आप एम्प्लॉयज को भेज देंगे काम करने के लिए. बट यहां पे तो लॉकडाउन ही हो गया, एम्प्लॉयज कैन नॉट मूव. राइट? दिस इज अ न्यू सिचुएशन. कंटिजेंसी प्लान्स क्या बोलता है? यू हैव एन ऑल्टरनेटिव प्लेस वेयर यू कैन रीलोकेट द एम्प्लॉयज, यू कैन रीलोकेट द वर्क. बट यहां तो आप वो भी नहीं कर सकते. आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, एक्स्ट्रा लोकेशंस हैं जहां पे आपको आप सर्वर्स को शिफ्ट कर सकते हो, बट आपके पास मैन पावर ही नहीं है जो उस लोकेशंस पे जा सके बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. सो दिस वाज अ न्यू सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग बिजनेस कंटिजेंसी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग आल्सो फेल्ड. दैट इज द रिस्क ऑफ रेजिलियंसी. राइट? So COVID-19 is the biggest test of resiliency of economic and financial system after 2008 crisis. बहुत सारे बैंक्स ने आउटसोर्सिंग किया हुआ था अपने ऑपरेशंस को. आई वॉज टॉकिंग टू सम पीपल, आई वॉज रीडिंग समथिंग फ्रॉम चाइना. चाइना वॉज सेइंग कि उनके बहुत सारे ऑपरेशंस आउटसोर्स किए हुए पुणे में, एंड पुणे में लॉकडाउन होने के कारण वहां के जो बैंक्स हैं उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा. एंड इतनी जल्दी वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता कि वो एकदम से बैकअप सपोर्ट पे आ जाएंगे.
तो जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज बैंक्स का जो भी कस्टमर सपोर्ट होता है, आईटी सपोर्ट होता है, वो जनरली वो आउटसोर्स करके रखते हैं। अब आपने सपोज कोई बैंक है, इंडियन बैंक, उसने आउटसोर्स किया हुआ चाइना में, चाइना में सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, तो उसके कारण बैंक्स हैव नो क्लू हाउ टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। एंड इमेजिन वो सपोर्ट्स अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो बैंक्स के ऊपर कितना बड़ा लिटिगेशन क्लेम होने वाला है, because customers will be facing losses because of credit card frauds and because of other frauds, and banks are not able to provide support. तो कितने बड़े लॉसेस ऑपरेशनल रिस्क के कारण होने वाले हैं, राइट? एटीएम्स मे रन ड्राई अमिड लॉकडाउन ओवर कंफ्यूजन। इसमें यही बोला हुआ था आर्टिकल में कि एटीएम्स की कार आ रही थी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पुलिस वाले उनको एटीएम फिल ही नहीं करने दे रहे थे। नाउ दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी। आप इमेजिन करो, आपके पास कैश नहीं है, बैंक्स ऑपरेटिव नहीं है, एंड आपको एटीएम से पैसा निकालना है। देयर कैन बी हेल्थ क्राइसिस एट द होम। एक कस्टमर को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, वो एटीएम से ही निकालेगा ना, बट एटीएम में आप कैश फिल ही नहीं कर सकते। आज तक कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ, बिकॉज देयर वाज नॉट अ लॉकडाउन। यहां तो लॉकडाउन हो गया, द मैन पावर कैन नॉट ऑपरेट। सो दिस वाज अ ह्यूज टेस्ट ऑफ रेजिलियंसी, वेयर इन आई थिंक बैंक्स, Indian banks have worked moderately, but they have to improve a lot because they faced a lot of consequences and they are already running a lot of litigations, right? This is operational and resiliency risk. The last is liquidity risk. Liquidity risk क्या होता है? Liquidity risk is the risk of lack of cash flow, the lack of liquidity. सबसे ज्यादा रिस्क, वी ऑल नो अबाउट बैंक्स एंड एनबीएफसीज। सबसे ज्यादा रिस्क हमारी इकोनॉमी में एनबीएफसीज ने लिक्विडिटी रिस्क फेस किया है। एनबीएफसीज क्या होते हैं? एनबीएफसीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ शैडो बैंक्स। हमारे कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ शैडो बैंक्स होते हैं। शैडो बैंक्स बैंक से कैसे अलग होते हैं? शैडो बैंक्स बेसिकली दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स, बट दे प्रोवाइड लोन्स, दे लेंड either for infrastructure or like Bajaj Finance for basic commodities, they lend to borrowers. Now NBFCs वो लोग क्या करते हैं, जैसे ILFS का क्राइसिस मैं आपको बताता हूं। ILFS में क्या हुआ था? ILFS में, now ILFS is a NBFC, it's a leasing and finance company जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लेंड करती है, right? And since NBFC they don't accept deposits from the customers, उनके पास फंडिंग कहां से आएगी? उनके पास फंडिंग आती है फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग। वो बोरिंग करते हैं बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स। तो वो जो कमर्शियल पेपर्स इशू किए थे ILFS, उससे वो बोरिंग कर रहे थे एंड उससे क्या कर रहे थे? लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे। The commercial papers that NBFCs that ILFS was issuing was short term commercial paper। मतलब इमेजिन करो, मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 10 साल के लिए फंड्स प्रोवाइड कर दिए, बट वो पैसा आना भी तो चाहिए एनबीएफसी के पास। बैंक्स के पास तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बैंक्स के पास डिपॉजिटर पैसा रखता है, तो बैंक्स के पास डिपॉजिट है। बट जो शेडो बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, उनके पास डिपॉजिट नहीं होते, तो वो लोग क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग करेंगे बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स। नाउ ILFS के केस में वो जो कमर्शियल पेपर्स इशू किए हुए थे, वो LIC ने होल्ड किए हुए थे, वो SBI ने होल्ड किए हुए थे, वो सेंट्रल बैंक ने होल्ड किए हुए थे, राइट? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किए हुए थे कमर्शियल पेपर। मतलब होल्ड किए हुए थे, मतलब उन्होंने लेंड किया हुआ था ILFS को फॉर शॉर्ट टर्म, एंड ILFS वाज नॉट एबल टू पे बैक ऑन दोस कमर्शियल पेपर्स, राइट? एंड सिंस वो पे बैक नहीं कर पाए, आप इमेजिन करो वो शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर होल्ड करके बैठे हैं जिसका मैच्योरिटी सपोज 3 महीने है और लेंडिंग 10 साल के लिए की है, तो 3 महीने बाद वापस से रोल ओवर करना होगा ना उस कमर्शियल पेपर को। रोल ओवर करने का मतलब 3 महीने बाद पुराना कमर्शियल पेपर पे करना होगा और नया कमर्शियल पेपर इशू करना होगा। बट इमेजिन NBFCs आर नॉट एबल टू पे बैक द प्रीवियस कमर्शियल पेपर बिकॉज पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन ILFS। तो वो रोल ओवर कर ही नहीं पाए, रोल ओवर कर ही नहीं पाए, तो उस केस में दे हैव टू पे बैक देयर प्रीवियस कमर्शियल पेपर्स, दे आर नॉट एबल टू पे बैक। तो उनको जो उन्होंने लोन्स दिए हुए थे वो खराब दामों पे उनको बेचने पड़े मार्केट में। एंड यू माइट नॉट बी नोइंग, लोन्स मार्केट में बिकते हैं,
right? This is called mismatch, ALM mismatch, that you have long term assets funded by short term liabilities. हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी मैच्योरिटी मिसमैच या जिसको मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट बोलते हैं उसमें डील करता है. उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है. दे आर लेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म बाय बोरिंग फॉर शॉर्ट टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म में रेट्स ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं. सो लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करते हैं 10-12% पे, एंड शॉर्ट टर्म में बोरो करते हैं 2-3% पे, एंड उसको रोल ओवर करते रहते हैं, राइट? रोल ओवर करने का मतलब मैंने 3 मंथ्स के लिए बोरो किया, मेरा 3 मंथ्स ड्यू हुआ, उसको पे करूंगा, एक नया लोन ले लूंगा 3 मंथ्स के लिए. बट ऑल दिस बिजनेस मॉडल इज ऑपरेटिव ऑन द एजम्पशन दैट यू आर एबल टू रोल ओवर. बैंक्स को इतना प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं. ऑल्दो बैंक्स आल्सो फेस्ड क्राइसिस, यस बैंक में हुआ ही था, डिपॉजिट रन ऑफ हो गया, कस्टमर्स ने अपना डिपॉजिट निकाल लिया बैंक से, राइट? बट एनबीएफसीज में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है बिकॉज उनके पास डिपॉजिट नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं. वो शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स को उनको रोल ओवर करना पड़ता है टू कीप दैट लेंडिंग इंटैक्ट. बट आईएलएफएस के केस में क्या हुआ, दे वर नॉट एबल टू पे दोज शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स. बट उसको होल्ड कौन करता है, उस कमर्शियल पेपर्स को होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड्स. याद करो, ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो ओवरनाइट के लिए इन्वेस्ट करते हैं. वो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, वो इसी तरह के कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एंड वो म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, दे फेस्ड हेवी लॉसेस. बैंक्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है एनबीएफसीज में. So if NBFC fail, banking system also fail, and this entire becomes a systemic liquidity crisis, right? Because of this maturity mismatch. That is liquidity risk. That is liquidity risk that NBFC were facing from 2018, and they are now facing much more at 2020, right? Because the confidence in NBFC have decreased, the sentiment is no more available for NBFC investments. तो वो लोग अपने कमर्शियल पेपर इशू करके फंडिंग रेज ही नहीं कर पा रहे, एंड गवर्नमेंट ने इनको हेल्प करने के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम निकाली है, उसको अभी मैं डिस्कस करूंगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग एनबीएफसीज. आपका बजाज फाइनेंस हो गया, उसकी वेल्थ, उसकी इक्विटी प्राइसेस क्रैश हुए. आपके एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी इज अ गुड एनबीएफसी, तो उसका क्राइसिस नहीं हुआ इतना. बट यू कैन टॉक अबाउट you can talk about other NBFCs, whether it is Bajaj Finance, whether it is DHFL. DHFL तो बिल्कुल जीरो पे ही आ गया है. So NBFCs are facing the biggest crunch right now. India Bull Housing Finance, correct? They are facing the biggest crunch because उनका business model ही एक तरह से flawed हो चुका है इस time पे. They were lending for short term, they were lending for long term by borrowing for short term. But अभी वो borrow ही नहीं कर पा रहे short term के लिए, right? So this is liquidity risk. ये हमारा funding liquidity risk हुआ. हमारा transaction liquidity risk भी होता है कि if you are able to, if you are wanting to sell your assets, you will have to sell at fire sale prices, right? तो अभी जब 2020 में transaction liquidity risk कैसे हुआ था, मिड कैप और स्मॉल कैप में लिक्विडिटी चली गई थी पूरी. जब क्राइसिस हुआ था कोविड के टाइम्स पे, देयर वाज नो लिक्विडिटी इन द मार्केट्स, राइट? सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी, जो चीज 10 रुपए में बिकनी थी वो चीज 4 रुपए 5 रुपए में बिक रही थी. दैट इज ऑल्सो लिक्विडिटी रिस्क, बट दैट इज ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी रिस्क. ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी रिस्क. एंड दे वर सेइंग ये निफ्टी सेंसेक्स इतना क्रैश क्यों हुआ, बिकॉज मार्जिन कॉल्स ट्रिगर्ड, ओवर लेवरेज्ड पोजीशंस, उसमें मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुआ. मार्जिन कॉल्स पे करने के लिए लिक्विडिटी थी नहीं बैंक्स के पास, so they had to cut their positions, and by cutting their positions they exemplified the losses, they amplified the losses, right? और बैंक्स भी क्या करता है, बैंक्स भी मैंने बोला कि उनके पास डिपॉजिट होते हैं बट वो कुछ इंटर बैंक बोरिंग भी करते हैं, राइट? They indulge into interbank borrowing. एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करेगा. All this interbank borrowing market squeezed. वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल ही नहीं है. इंटरबैंक रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए. मतलब बैंक्स का जो मॉडल था कि लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में रेट्स लो हैं, वो एक्चुअल में लो रेट्स है ही नहीं. रेट्स इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. इंटरबैंक रेट्स सर्ज ऑन राइजिंग रिस्क एवर्जन.
Thus, the profitability of bank has taken a huge cut because of this liquidity squeeze. So banks, if we want to summarize, they are facing a lot of risk. They have faced a lot of risk that we study in a bookish style: market risk, you can say credit risk, operational risk, and liquidity risk, and obviously resiliency risk as well. Right? I hope this makes sense. मैंने एक summary आपको दिया है कि banks क्या क्या risk face करते हैं. Because if you go to interviews, if you go for risk management jobs, you should know कि COVID ने specifically कैसे मार्केट रिस्क ट्रिगर किया है, कैसे क्रेडिट रिस्क ट्रिगर किया है, कैसे ऑपरेशनल रिस्क ट्रिगर किया और कैसे लिक्विडिटी रिस्क ट्रिगर किया. You should be able to speak. Right? Now, what are the measures that government have taken? गवर्नमेंट ने लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन किया, बट वो तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल था, वो बैंक्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज बैंक्स का एनपीएस तो उसके कारण बढ़ने वाला है. एंड आई प्रूव्ड कैसे, बिकॉज बैंक्स का एक्सपोजर बढ़ने वाला है, तो बैंक्स के लॉसेस तो बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस मेजर. जो मेन मेजर्स अभी लेके आए हैं, 1 लाख करोड़ का मेरे ख्याल से टीएलटीआरओ किया आरबीआई ने, एंड अराउंड 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लेके आए. मैं उसको शॉर्ट में डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज काफी सारे लोग इसको समझना चाहते थे. राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी. मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा, जिससे आपको प्रोसेस क्लियर हो. बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, या गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एसबीआई को बोला कि अपनी सब्सिडरी के थ्रू एक एसपीवी क्रिएट करे, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करे. तो एसबीआई की सब्सिडरी है एसबीआई कैप, उन्होंने एक एसपीवी क्रिएट किया, स्पेशल पर्पस व्हीकल. सो एसबीआई कैप सेटअप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. आरबीआई क्या करेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम होता है सिक्योरिटीज इशू करना. तो उन्होंने सिक्योरिटीज इशू किया, एंड आरबीआई ने उस सिक्योरिटीज को बाय किया. बदले में दे पेड मनी टू एसपीवी. सिक्योरिटीज मतलब कमर्शियल पेपर जैसे होते हैं, वैसे उसी तरह से एसबीआई कैप ने एसपीवी इशू किया, एसपीवी ने आरबीआई को सिक्योरिटीज इशू किया, एंड आरबीआई ने बदले में क्या दिया, पैसा दिया. And these securities were fully guaranteed by Government of India, because this scheme was launched by government, announced by Nirmala Sitharaman. Right? Now ये SPV क्या करेगा, इसके पास पैसा आ गया, NBFCs को अलाउ किया गया, because उनके commercial papers, उनके bonds कोई बाय नहीं कर रहा था. Right? That was the issue that NBFC were facing, that their commercial papers were not getting bought by the investors. Mutual funds, LIC, इंश्योरेंस कंपनीज उनके कमर्शियल पेपर्स को बाय नहीं कर रही थी, जिसके वजह से वो लोग को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा था. तो नाउ दे स्टार्टेड सेलिंग पेपर्स एंड बॉन्ड्स टू दिस एसपीवी, एंड इस एसपीवी को बाय करना पड़ेगा, क्योंकि दिस वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस ओनली. एंड बदले में उनको क्या मिला, दे पेड मनी टू एनबीएफसी, दे बॉट दिस पेपर्स, एसपीवी बॉट दिस पेपर्स एंड पेड मनी इन रिटर्न. एंड एनबीएफसी फिर इस पैसे का क्या करेगा, दे यूज्ड मनी टू पे ऑफ द डेट. जो प्रॉब्लम उनका आ रहा था कि दे वर नॉट एबल टू पे ऑफ द डेट टू म्यूचुअल फंड्स, टू बैंक्स, टू एलआईसी, टू एसबीआई, टू सेंट्रल बैंक, वो मनी उन्होंने यूज किया टू पे ऑफ द डेट. बेसिकली ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का यूज क्या था, इसका यूज यही था कि अलग से गवर्नमेंट एंटिटी बनाई जाए, उसको गवर्नमेंट एंटिटी बोल लो या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटी बोल लो, जिसमें गवर्नमेंट की एक कंपनी ने, पीएसयू कंपनी ने एसपीवी क्रिएट किया, उसकी एक सब्सिडरी ने, उसने जाके पेपर्स बाय किए जो कोई और बाय नहीं कर रहा था एनबीएफसी के, एंड बदले में उसको पैसा दिया. उनके पास पेपर कहां से आए, उन्होंने सिक्योरिटीज इशू किया आरबीआई को, एंड आरबीआई ने उनको बदले में पैसा दिया. आरबीआई को कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज दीज सिक्योरिटीज आर फुली गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट? सो एनबीएफसी को पैसा मिला, उन्होंने वो पैसा पे किया टू म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स, एंड दे गॉट लिक्विडिटी, व्हिच वाज द मेन problem that NBFCs were facing. So this is liquidity, special liquidity scheme which Government of India announced, which Nirmala Sitharaman ji announced, and it was to the tune of I think 30,000 crores. Right? इसके कारण NBFCs got liquidity. Is this clear? आपको पता होना चाहिए special liquidity scheme क्या होता है. Is this clear, guys? Loss is arising to government anyway. Loss is arising to government, but government has the end result that they can print money.
but definitely losses will arise for government. Second is TLTRO. What if NBFC fails to repay to SPV? In that case, government will take a hit, but the idea is कि NBFCs को business में रखेंगे. अगर उनके पास एक liquidity आ जाएगा short term में, they will remain in the business and they will be able to pay back the money. That was the idea. But obviously, अगर उसके बाद भी NBFC fail होता है, then government will take a hit. Right? Second is TLTRO. What is the full form of TLTRO? It's targeted long-term repo operations. Now repos क्या होते हैं? Repos होते हैं कि suppose दो पार्टी है A और B. A क्या करेगा? A लोन लेगा और A बदले में collateral sell करेगा पार्टी B को. Right? A will take a cash flow, A will take a loan and give a collateral against that loan. And कुछ time period बाद A will buy back that collateral and pay back the loan at that borrowed amount plus some interest. वो जो interest rate applicable होता है उसको repo rate बोलते हैं. Right? Repo repurchase agreements. मतलब पहले collateral को sell करेगा A B को, बदले में लोन लेगा, बाद में A repurchase कर लेगा उसी collateral को, बदले में पैसा वापस कर देगा with some interest. That interest rate is called repo rate. Generally, repo agreements हुआ करते थे banks और RBI के बीच में, and the duration of those repo agreements was 28 days, 1 to 28 days, short term के लिए. जो बैंक्स को लिक्विडिटी चाहिए, उनके पास लिक्विडिटी आती है डिपॉजिट से, उनके पास लिक्विडिटी आती है इंटरबैंक बोरिंग से, उनके पास लिक्विडिटी रेपोज से भी आती है. रेपोज मतलब वो आरबीआई को कोलैटरल्स देते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड बदले में आरबीआई से लोन लेते थे फॉर शॉर्ट टर्म टू मीट देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिमांड्स फ्रॉम 1 to 28 days. एंड जो रेट एप्लीकेबल था इस बोरिंग पे, दैट वाज कॉल्ड रेपो रेट. एक तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट का रिडक्शन किया. तो रेपो रेट के रिडक्शन से क्या हुआ, they were able to borrow more. They were able to borrow more. And अगर ये banks borrow कर पाएंगे तो उनके पास short term में liquidity available रहेगी. And they will be able to lend in the economy. Economy में lend करेंगे तो economy में projects लगेंगे, economy stall back नहीं करेगी. There will be growth projects in the economy. तो repo rate का reduction किया गया. But ये TLTRO क्या है? यह targeted long term repo operations. जैसे मैंने बोला कि जनरली रेपोज जो होते हैं वो 1 to 28 डेज के थे, जो बैंक्स और आरबीआई के बीच में थे. बट बैंक्स को उससे सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी. बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बोरो करना चाहोगे, वी हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर, तो आपके इंटरेस्ट रेट्स हायर होंगे या लोअर होंगे? जनरली हायर, राइट. बट ये स्कीम में आरबीआई ने बोला कि वी विल प्रोवाइड यू रेपो एग्रीमेंट्स first of all for long term, for up to 3 years, but at the same repo rate which was applicable for 28 days. I think it was around 5%. तो जो 28 days के लिए आपके ऊपर रेपो रेट एप्लीकेबल होता है, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा रेट एप्लीकेबल होना चाहिए, बिकॉज हायर द मेच्योरिटी हायर द लिक्विडिटी रिस्क. बट इस स्कीम में टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, आरबीआई सेड we will enter into repurchase agreements for long term. That is why the name is targeted long term repo agreements. So long term के लिए repo agreements में enter करेंगे, but at the rate applicable which was applicable earlier only, the short term rate. So this was a huge relief, and it was to the tune of 1 lakh crore. 1 lakh crore. 1 lakh crore का TLTRO scheme था, right? So TLTRO in short, आरबीआई ने बोला कि हम आपके साथ रीपर्चेज एग्रीमेंट्स करेंगे बट लॉन्ग टर्म के लिए, एंड रिपो रेट जो एप्लीकेबल होगा वो शॉर्ट टर्म का ही रेट एप्लीकेबल होगा. एंड दिस वाज टू द ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़. सो दीज आर द टू मेन स्कीम्स विच यू शुड नो, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं फॉर टैकलिंग दिस कोविड. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? लास्ट इज what is the demand of risk professionals. So I was reading some articles and they were all saying that the demand of risk managers will increase. And I was also reading a great article by KPMG Risk Advisory Services. It was saying कि कौन-कौन से areas अभी risk manager को सीखने पड़ेंगे. Obviously risk manager पहले finance, financial products और risk को पढ़ता ही था, right?
But now the focus is increasing more on capital adequacy norms, the Basel regulations, because capital adequacy norms और ज्यादा stricter होंगे कोविड के बाद. So capital adequacy norms का knowledge होना चाहिए एक risk professional को. Analytics will improve because everyone will start working from home. So there will be more automations, and with more automations, the demand for analytics will increase after COVID. And the third is the knowledge of economy. The knowledge of economy, because we all know that सारे के सारे crisis का reason क्या होता है? Mainly because of lack of liquidity. And liquidity and economy goes hand in hand. Right? अगर आपको liquidity tackle करनी है तो आपको economy समझ में आनी चाहिए. So economy का knowledge risk professionals को लेना ही पड़ेगा. And I'm happy to say that FRM ने GARP ने COVID से पहले ही liquidity risk introduce कर दिया गया FRM part 2 में. And that too very exhaustively. Around 20 readings are there, and उसमें हम लोग economy पढ़ते हैं एक तरह से कि economy में कैसे liquidity का problems होते हैं, क्या क्या tools हम use कर सकते हैं, क्या क्या tools RBI use कर सकता है. So FRM as a professional is also evolving. As a profession is also evolving. Earlier we only used to focus on financial products, the knowledge of risk, but now there is a great focus on capital adequacy norms because they are going to get stricter. There will be focus on analytics when the work from home will be the new norm, and the knowledge of liquidity and economy is the great need of the hour. And it is a consensus that the demand for risk managers will increase. बाकी प्रोफेशंस अगर आप देखेंगे, मर्जर का डील्स, एक्विजिशंस, मर्जर एक्विजिशंस, ये सब डील्स कम होने वाले हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कम होने वाली है, बट रिस्क प्रोफेशनल्स का डिमांड तो बढ़ने वाला है. एंड यू ऑल एग्री विद मी, राइट? बिकॉज दिस इज अ FRM इज अ वेरी इलाइट प्रोफेशन जो इस सबको टैकल करता है. हम लोग एनालिटिक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं, हम लोग अभी इकोनॉमी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया बिकॉज FRM पार्ट 2 में लिक्विडिटी आ गया है. हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत एग्जॉस्टिवली डिस्कस करते हैं, हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म समझते हैं, हम लोग रिस्क को तो समझते ही हैं. So this is a very niche profession. There is no such profession which is handling all these areas. ये सिंपल नहीं है इतने सारे एरियाज को टैकल करना, इतने सारे एरियाज को कंसेंसस में समझना. Only FRM as a profession understands this. So I was reading some articles which were saying that the demand for risk managers will definitely increase. So you all don't have to worry. I can assure that you don't have to worry. The demand of risk management as a profession will only increase after this COVID, if not decrease. Right? बाकी बहुत सारे professions हैं जो hit लेंगे, especially investment banking. But risk management part of investment banking will not take a hit. Right? I'm sure about it. So this was all what I wanted to share. I welcome any question that you might have. Anything, what are the risks banks are facing, what are the measures government is taking, and how the demand will evolve. Is India heading towards a low interest rate economy? The interest rates are decreasing because earlier also we were suffering crisis. The GDP was low, so to boost the economy, the interest rates were reduced. But India will not become a very low interest rate economy like the other countries. Analytics risk professional. For those who are wanting to do FRM, they can watch a separate video of mine. We will share that in the email. That is an introduction video because this session was not focused toward understanding what is the curriculum of FRM, what are the job prospects of FRM. This was indulged towards the impact of COVID on risk management profession, how it will evolve, and what are the risks that banks are facing. Yes, you will be able to pass FRM in November. You can talk to me later on in WhatsApp. A new batch we will be announcing on FRM part 1. For that, you can you can wait for an email that we will be sending. The email we will have the FRM introduction video, and it will also have the details of the new batch starting. Right? Risk management is becoming a great profession today, and there is no doubt about it. CFA professionals, some of the areas will take a hit, like alternative investments will take a hit. I think because real estate down hai, asset classes down hai, and
some mergers, acquisitions will take a hit, but some of the areas will get a boost as well. Definitely you can pursue FRM after CFA and CA as well, right? So this was all I wanted to discuss from my side. I will share the video. The video will be uploaded on YouTube. Please understand all these things because आपको पता होना चाहिए ये सेशन लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, बिकॉज आप इंटरव्यूज में जाओगे एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक ऑन सिंपल थिंग्स जो आप पढ़ रहे हो. बहुत सारे लोग यहाँ पे एफआरएम पढ़ रहे हैं कि कैसे एक्चुअली अलग अलग रिस्क ने बैंक को इम्पैक्ट किया है, गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया है, वो मेजर्स का क्या यूज है, एंड हमारे प्रोफेशन में हमें कौन कौन से एरियाज को डेवलप करने की जरूरत है. तो जो लोग अर्लियर पास्ड आउट है उनको मैं बोलूंगा लिक्विडिटी एंड इकोनॉमी समथिंग दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड. उनको पक्का से सीखना चाहिए बिकॉज दैट वाज नॉट अवेलेबल इन देयर करिकुलम टिल लास्ट ईयर. ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है. बट एनालिटिक्स, capital adequacy norms, we have been doing very exhaustively in our sessions, right? For any questions regarding whether FRM is good with CA, whether FRM is good with CFA, you can watch my lecture. I will share it via email. आपका जो एक email आया होगा this meeting link का, उसी तरह से एक follow up email आएगा जिसमें you will get an introduction video. You can watch that introduction video which will clear all your doubts, and after that you can always WhatsApp me, right? CA इंटर वाले भी कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं, CFA वाले भी कर सकते हैं, CA वाले भी कर सकते हैं, because it is a great blend of many areas which you will be learning in FRM, right? So thank you very much guys. I hope the session was informative. Thank you for taking out time on Sunday, and I will share this PPT as well. Just have a look, just understand all the areas that you need to know. थोड़ा सा गूगल पे और सर्च करो कि और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज मैंने शॉर्ट में ही बताया है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कोविड ने कैसे इंपैक्ट किया रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री को. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे.